everyone. Continuing our topic of thermodynamics, we are going to start with thermochemical equation. First of all, what the chemical equation is? Chemical equation is the symbolic representation of the chemical reaction. कोई chemical reaction हो रही है, उस reaction को अगर हम symbols के form में represent करते हैं, that symbolic representation is the chemical equation. And if heat changes which are accompanied in the chemical reaction, they are also there in the balanced chemical equation, then it is known as thermochemical equation. अब हमें पता है कि therm word is used for heat. तो अब heat evolve हो रही है reaction में products के साथ या reactants को react होने के लिए heat चाहिए. Means enthalpy change or heat changes which are accompanied along with the chemical reaction, if they are also mentioned there, then that balanced chemical equation is known as thermochemical equation. And this is what here is, that a balanced chemical equation which gives us heat change, whether the heat evolved or absorbed, that is enthalpy change which is taking place during the reaction, is known as thermochemical equation. Now some of the conventions which are accompanied with the thermochemical equations which are to be kept in mind, they are, first is for exothermic reaction. अगर reaction exothermic है, exothermic means exo means out, therm means heat, means heat is evolved, heat is given out when the reactants react and the products they are formed. In that case enthalpy change की value negative sign के साथ represent होगी, means magnitude of enthalpy change, कितना heat evolve हो रहा है वो number किसके साथ लिखा जाएगा, negative sign के साथ. Means अगर chemical reaction लिखी है, chemical equation लिखी है और उसके साथ ये show किया गया है कि delta H की value negative है, तो it's obvious that this reaction is exothermic because the heat is getting evolved and it is indicated by the negative sign with the magnitude value. Similarly for endothermic reactions, the value of delta H is positive. मतलब जो भी हम heat देंगे उसकी जितनी भी value होगी, that is written with a positive sign which indicates that the reaction is endothermic and we are supplying the heat to the reactants for their reaction to get converted to the product. Next is standard state. What a standard state is, when a substance is in most stable state at 1 bar pressure and 298 Kelvin, that state of the substance is known as standard state. Next is different enthalpies are written with the symbol as a subscript. मतलब जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन का, जैसे सपोज अगर कोई रिएक्शन हुआ तो हम उसको क्या लिखेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस. कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें एंथैल्पी चेंज हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रहा है, उस रिएक्शन के लिए हमने क्या लिखा, डेल्टा एच के पैर में आर. मींस सिंबल इज रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट कि रिएक्शन हो रहा है. अब वो रिएक्शन क्या हो रहा है, जैसे अगर कोई चीज बन रही है तब हम उसे लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड द सिंबल फॉर इट इज डेल्टा एच एफ. इन द सेम वे इफ वेपराइजेशन इज टेकिंग प्लेस, then the symbol for it is delta HV. Similarly अगर sublimation हो रही है delta HS, atomization हो रही है delta HA. means जो भी reaction हो रहा है enthalpy change जिस भी reaction के साथ accompanied है उसके symbol को हम subscript लगाकर लिख देंगे तो हमें उसको पता चल जाएगा कि वो enthalpy change किस वजह से हो रही है, किसी reaction पूरे रिएक्शन की वजह से, किसी चीज की वेपराइजेशन की वजह से, किसी चीज की फॉर्मेशन की वजह से. वन मोर थिंग आई हैव रिटन हियर इज डेल्टा एच आर नॉट. ऊपर ये जीरो डाला है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच आर नॉट. मींस दिस इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इन स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड स्टेट मींस when the substances which are reacting it and are getting formed, they all are in their standard states. और standard state हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या है, कोई भी सब्सटेंस जब मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, कब, 298 केल्विन और 1 बार पर. मींस व्हेन द एलिमेंट्स दे आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स and the enthalpy change is accompanied with the reactants and the products, then that is represented by delta HR naught. In the same way for vaporization, delta HV naught. For standard enthalpy of
formation, delta HF naught and so on. Next is coefficients of the substance represent the number of moles of each substance involved. रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के आगे जो नंबर लिखा होता है उसे बैलेंस करने के लिए दैट इज टर्म्ड एज कोफिशिएंट। अब वो कोफिशिएंट्स हमें ये दिखाते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने मोल्स रिएक्टेंट के रिएक्ट हो रहे हैं और कितने मोल्स प्रोडक्ट के बन रहे हैं। When coefficients are multiplied or divided, suppose हमें अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है किसी चीज की या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन निकालनी है, इन दैट केस अगर हम किसी रिएक्शन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसके साथ एकम्पनीड एंथैल्पी चेंज की वैल्यू भी उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट होगी जैसे जैसे हम इक्वेशन को करेंगे। अगर पूरी इक्वेशन सपोज 2 के साथ मल्टीप्लाइड है तो कोफिशिएंट्स सभी कोफिशिएंट्स 2 के साथ मल्टीप्लाइड होंगे और उसके साथ एकम्पनीड एंथैल्पी चेंज भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इन द सेम वे इफ वी आर डिवाइडिंग द इक्वेशन विद सम नंबर तो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू भी उसी के साथ होगी। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंड वी आर रिवर्सिंग इट तो एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो भी रिवर्स हो जाएगी। मींस सपोज हमें एक रिएक्शन गिवन है कि दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और हमें दिया गया है कि जो रिएक्शन है उसमें हीट इवॉल्व हो रही है, नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेटेड है, एंड द रिएक्शन इज रिवर्सिबल मींस वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, एंड इन एनी केस हमें उस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में ऑब्जर्व करने की जरूरत है तो हम उसमें एंथैल्पी की वैल्यू को भी नेगेटिव की जगह रिवर्स करके पॉजिटिव वैल्यू में कंसिडर करेंगे, क्योंकि जब वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था तो एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव थी, जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ऑब्वियसली एंथैल्पी की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद हम करेंगे कि डिफरेंट एंथैल्पीज कौन कौन सी है, मींस कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिनके साथ एनर्जी चेंजेस एकम्पनीड है और अगर उन्हें हमें कैलकुलेट करना है तो हम इन कन्वेंशंस को यूज करके उन वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। Now regarding different types of enthalpies, the first one is enthalpy of formation. मींस एक रिएक्शन हो रहा है और उसमें कोई एक चीज बन रही है फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट्स, तो उस रिएक्शन में उस फॉर्मेशन में प्रोडक्ट्स के साथ जो एंथैल्पी चेंज होगा, जो एनर्जी चेंज होगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म्स, कि जब जो कितना एंथैल्पी चेंज होगा जब 1 मोल सब्सटेंस बनेगा उसके एलिमेंट से। और इसी तरह स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, it is the same enthalpy change when 1 mole of a substance is formed from its elements but in their standard states. Now by convention the standard enthalpy of formation of every element in its standard state is assumed to be 0. सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, O2 इनकी अगर एंथैल्पीज लेनी है तो वो बाय कन्वेंशन हम 0 कंसिडर करते हैं कि अगर N2 बन रहा है फ्रॉम नाइट्रोजन एलिमेंट्स, O2 बन रहा है फ्रॉम ऑक्सीजन एटम्स, तो उनकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसे हम 0 कंसिडर करते हैं। अब अगर हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो वो हम कैसे निकालते हैं? दिस इज द साइन ऑफ समेशन, समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब हमें जो एंथैल्पी चेंज रिएक्टेंट्स के अंदर स्टैंडर्ड स्टेट दिए हुए हैं और जो प्रोडक्ट्स के दिए हुए, तो प्रोडक्ट्स के एंथैल्पी चेंज सारे टोटल एंथैल्पी चेंजेस में से अगर हम रिएक्टेंट्स के एंथैल्पी चेंजेस माइनस कर दें तो हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। Here A and B are the coefficients of coefficients, A किसके प्रोडक्ट के और B किसके रिएक्टेंट्स के। इसी चीज को समझने के लिए अब हम इस पर बेस्ड एक अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करें, द न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन हो रहा है क्या, अमोनिया और ऑक्सीजन दे आर गेटिंग रिएक्टेड, उस रिएक्शन में क्या बन रहा है, नाइट्रोजन एंड वाटर। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन टू अस at 298 Kelvin, and what else is given to us, enthalpy of formation of ammonia and
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब हमें निकालना क्या है, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, मींस वी हैव टू फाइंड डेल्टा एच आर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्ट फॉर द रिएक्शन। अब एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन के लिए हमने क्या कहा कि जितने एंथैल्पी चेंजेस हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के, जितने हमें गिवन है, माइनस द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। अब हमें यहाँ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स के पहले लिखनी है और उनका सम टोटल करना है। प्रोडक्ट्स कौन से हैं हमारे पास, नाइट्रोजन है, वाटर, और रिएक्टेंट्स क्या है, अमोनिया एंड ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, सम टोटल ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स minus sum total of enthalpies of reactants. Now here 2 into enthalpy of formation of nitrogen plus 6 into enthalpy of formation of water minus 4 into enthalpy of formation of ammonia minus plus 3 into enthalpy of formation of oxygen. Products minus reactant, और ये 2, 6, 4, 3 these are the coefficients which are there in the reaction. Now enthalpy of formation for nitrogen, ये हमने assumption में किया था कि किसी भी एलिमेंटल स्टेट में होगा तो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट हम 0 कंसिडर करेंगे। सो 0 प्लस 6 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इट इज गिवन टू अस -286 किलोजूल पर मोल, माइनस now here is 4 into enthalpy of formation of ammonia. Enthalpy of formation of ammonia is given to us, that is -46. So 4 into -46 for enthalpy of formation of ammonia plus 3 into enthalpy of formation of oxygen, and now oxygen is in its standard state, so air formed from its element, so it is taken as 0 by convention. Now on solving it, इसको अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। सो एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन ऑन सॉल्विंग इट विल गेट -1532 किलोजूल, which is the enthalpy for the reaction here. Now by convention हमने किया था कि एंथैल्पीज भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होंगी अगर हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ ये कोफिशिएंट जैसे अमोनिया 4 से मल्टीप्लाइड था तो इसकी एंथैल्पी को भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ वाटर की हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन थी एंड द कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ इट वाज 6, तो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया। एंड बाय दिस कन्वेंशन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ nitrogen, they are taken as 0. So now on solving it, finally the enthalpy of reaction is -1532 kilojoule. Next we will discuss some more examples based on it along with other types of enthalpies. Thank you.